It is going to be separate from science 2. You have to prepare a separate notebook, a fair notebook for science 1, because whatever I'm going to teach you, I am going to give you notes on the spot. Like you have to keep your pencil or pen, whatever, especially pen, of course. You have to keep your notebook and a pen with you, so that whatever I'll teach you, I'll give you it the written part on the spot. Okay, so be prepared with a fresh notebook जिसमें आपने कहीं और का कुछ रफ ना किया हो, because this you are going to use for your boards examination. So please be prepared with a fresh notebook. For science 1, you have to make a separate notebook. Make it clear, because anytime I can tell you to open your camera and show me your notebook. Okay, so ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आज इधर बनाया कल उधर बनाया, ऐसा नहीं होना चाहिए. You should be very focused now, because you are going to give a boards. So now you have to be very, very attentive, as well as you have to prepare your notes properly. That is what I want to say. Okay, and if you don't understand anything, like if I'm teaching something and if you're like ma'am nahi samajh mein aaya, please don't leave it. Clear it on the spot. Clear it on the spot. Okay, whatever Miss. I'll tell you to learn and come, you have to be ready every time. Now you have to change your habits, right? Whatever you have done in the past, that should not repeat, because now you're going to give a boards. Okay, everyone will be like कि ठीक है boards होगा नहीं होगा. See, होगा. Everyone will be vaccinated till that time, and your boards will be there. So you have to be very clear that of course you people are going to face the boards. Okay, so make your notes properly. Whatever I'm telling you to prepare and come for the next time, be prepared with that. Don't just make a rough notebook, make a fair notebook, and that book should be separate. It should not mixed with other books like mathematics कर दिया फिर science 1 कर दिया फिर mathematics कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए. And I can check your notes any time. That is what I want to say. Okay, so please be prepared with those things. Today we are going to start with the chapter number 2. Give the heading as periodic classification of. Miss अपना camera. Can you people see my notebook? Yes, Miss. Notebook दिख पा रहा? Now is it more clear? Yes. No, you cannot use last year's notebook. You have to make a new fresh notebook. Last year notebook you don't have to continue. This is now you are into new standard. You should have a new notebook with you. या फिर last year में भी तो मैंने कुछ लिखवाया होगा ना, that will be useful, right? If you have not written a lot, then you can just staple the pages and you can make that for 10th standard. If you don't want to purchase, otherwise you have to make a fresh new notebook. That is very sure. Okay, so we are going to start with the chapter periodic. Can you see my notebook clearly? Periodic classification of elements. Whatever I have written on, whatever I have written on the notebook is clear to you? Yes, Miss. Please answer, बच्चों. Yes, Miss. Yes, Miss. दिखाई दे रहा है? Yes. कोई प्रॉब्लम नहीं है? No. Okay. No. So ठीक है, आगे बढ़ते हैं periodic classification of elements के साथ. Give the heading everyone. This is chapter number 2, periodic classification of elements. लिख के फटाफट. हेडिंग लिख के हो जाए तो बोलो, फिर we will move ahead with the chapter. लिख के हो गया है, Yeah? Okay. Now, see, whenever you want to study something, like अगर हम लोग एक chapter start कर रहे हैं, तो वो chapter start करने के पीछे reason क्या है? क्यों पढ़ना है? What is this periodic classification of elements? ये है क्या? Periodic classification of elements.
ये वर्ड क्या, ये स्टेटमेंट क्या स्पेसिफाई करता है या क्या समझाने की कोशिश करता है? ओके, नाउ व्हेन डिस्कवरीज स्टार्टेड टेकिंग प्लेस, अलग अलग लोग अलग अलग डिस्कवरी कर रहे थे, तब कुछ लोगों को इंटरेस्ट आया केमिस्ट्री पार्ट में. योर साइंस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स बच्चों. कौन से 3 पार्ट है बताओगे? बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. कौन से 3 पार्ट है? फिजिक्स एंड Chemistry, बायोलॉजी. physics, Chemistry and biology. biology. यस, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी. अब साइंस 1 में आप मोस्टली ये दोनों पढ़ोगे. साइंस 1 विल बी, which will be taught by me, it will be chemistry and physics. बायोलॉजी आपका साइंस 2 में आएगा. ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? समझे? Yes, yes. तो जब लोगों ने डिस्कवरीज करना स्टार्ट किया इन केमिस्ट्री, तो लोगों को बहुत अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स मिलना, गेट एलिमेंट्स ऑफ different type. अब मैम व्हाट इज एलिमेंट? सबसे पहली बात, उन लोगों को अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स मिलना चालू हुए, वो तो ठीक है, पर ये एलिमेंट्स है क्या? व्हाट इज दिस एलिमेंट? एलिमेंट होता क्या है? आपको पता है बच्चों व्हाट इज एलिमेंट? डू यू नो नेम्स ऑफ सम एलिमेंट्स? कुछ एलिमेंट्स के नाम पता है? Hydrogen, carbon, Hydrogen, oxygen, carbon, nitrogen, sodium. sulfur oxide. जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, सोडियम, ऑक्सीजन, etc. Correct? There are many elements altogether. So, when people started discovery in chemistry, they discovered different type of elements. Now, those elements जैसे कि आपको पता है हाइड्रोजन, कार्बन, सोडियम, ऑक्सीजन, etc. जब ये एलिमेंट्स मिलना चालू हुए, तो लोगों को लगा कि ठीक है, अभी तो मिल रहा है, चलो पहले 5 डिस्कवर हुए, 6 डिस्कवर हुए, लोगों को उनका नाम याद रखना इजी था. लोगों को उनकी प्रॉपर्टी, लाइक फॉर एग्जांपल, जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर एक क्लासरूम है, ठीक है, एक क्लासरूम है और उसमें सिर्फ कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे, 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मैं इन 5 स्टूडेंट्स का नाम प्रॉपर्ली याद रख सकती हूँ, है कि नहीं? हाँ या ना? Yes, ma'am. बोलो. Yes, miss. ये पढ़ने में yes. कैसे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज कैसी है, वो भी याद रख सकती हूँ, है Yes, कि ma'am. नहीं? Yes, miss. Yes, miss. जैसे जैसे स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ता जाएगा, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से समझो 20 हो गए, 20 से 30, 30 से 45, 45 से 100, क्या 100 बच्चों का भी नाम और प्रॉपर्टीज मुझे प्रॉपर्ली याद रहेगा क्या? बोलो. No, ma'am. रहेगा Yes. क्योंकि आप No. नंबर्स बढ़ गए ना. समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? समझे मैंने क्या कहा? अब Yes. जब लोगों ने डिफरेंट एलिमेंट्स डिस्कवर करना शुरू किया, स्टार्टिंग में तो कम एलिमेंट्स थे, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बट जैसे जैसे उन्होंने डिस्कवरी स्टार्ट किया, उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर किए. अब वो एलिमेंट्स डिस्कवर करने के बाद लोगों को लगा कि नहीं, ऐसे हम लोग कहीं पे भी कुछ एलिमेंट नहीं रख सकते, हमको उसके क्लासिफिकेशन करने की जरूरत है. अब इसका मतलब क्या है समझो. इफ यू आर एंटरिंग इनटू अ किचन, नहीं किचन का नहीं, लाइब्रेरी का एग्जांपल, लेट्स एंटर इनटू लाइब्रेरी. आपको ना एक बुक पढ़नी है. कौन सी बुक पढ़ोगे? समझो आपको एक्वेटिक एनिमल में आपको व्हेल के बारे में पढ़ना है, ठीक है. आप लाइब्रेरी में एंटर हुए, है ना? समझो लाइब्रेरी में जैसे आप अपनी बुक्स रखते हो, कहीं पर भी कोई भी बुक रखी है और आपको लाइब्रेरियन बोले ठीक है, तुम्हें जो भी बुक चाहिए तुम जाके ढूंढ लो, क्या तुम्हारे लिए इजी हो गया होगा क्या बुक ढूंढना? No, ma'am. No, miss. बट वहीं पे व्हेन यू आर एंटर इनटू लाइब्रेरी,
आपको पहले ही लाइब्रेरियन पूछे कि बच्चा आपको कौन सी बुक पढ़नी है, आप बोलोगे मुझे वेल की बुक पढ़नी है, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा, अगर उसने लाइब्रेरी अच्छे से क्लासिफाई की होगी, अच्छे से अरेंज की होगी, बोलेगा पहले आप एनिमल के सेक्शन में जाओ। मतलब ये एक बड़ी सी लाइब्रेरी है, उसमें वो बोलेगा कि जो एनिमल वाला सेक्शन है ना, पहले आप उसमें जाओ। फिर उसके बाद आप कहाँ जाओगे, एनिमल के सेक्शन से आप, अलग अलग टाइप के एनिमल होते हैं ना, टेरेस्ट्रियल एनिमल, एक्वेटिक एनिमल, यू नो अबाउट दिस, 3 टाइप्स होते हैं ना एनिमल के, Yes. you know Yes, ma'am. what are that, terrestrial, aquatic and amphibians, है ना, है कि नहीं? Yes. तो लेट्स टेक एग्जांपल कि एनिमल में जाने के लिए उसने बोला, एनिमल में जाने के बाद वो बोलेगा गो इनटू एक्वेटिक सेक्शन, एनिमल में जाकर आप एक्वेटिक सेक्शन में जाओ। एक्वेटिक सेक्शन में जाने के बाद आप फिश वाले एरिया में जाओ। फिर उसके बाद वहां पर जो W से शुरू होता है ना, वो वाले सेक्शन में जाओ। समझ रहे हो कैसे किया? पहले कहाँ गए? Yes. First you Animal went to, section. Animal then you section. went to, Animal. then you went to, Section. Aquatic. Fish. Fish. then you went to, Fish. then you went, Fish section. W. then you went to the W. fish W section. W. Fish. W, है ना? अब यहाँ पर बुक इजी फाइंड करना होगा या ऐसे मैस करके कोई भी बुक कहीं रखी है वहां पर इजीली फाइंड करना होगा? ये समझ ज्यादा रहे हो? इजी रहेगा। कौन सा इजी होगा, Yes, ये ma'am. वाला या मैं ऐसे कोई भी कहीं पे भी कोई भी बुक रखी हुई है और मैं बोलूं ठीक है जाओ इसमें से बुक निकाल लो? मैम आपको वेल की वैसे बुक चाहिए? कौन सा वाला पार्ट चाहिए? फर्स्ट वाला पार्ट First चाहिए, वाला। सेकंड वाला पार्ट? First वाला. first one. First. First फर्स्ट वाला. वाला पार्ट चाहिए, है ना? Yes, ma'am. मतलब क्लास, अगर हम चीजों को क्लासिफाई करके रखे तो हमारे लिए चीजें ढूंढना आसान होगा, है Yes. कि नहीं? Yes. 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 So इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन इजी हुआ, उसी तरीके से लोगों ने डिसाइड किया कि चीजों को क्लासिफाई करके रखना बहुत अच्छा होता है। सो जब उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर किए, उन्होंने कहा वी विल डू क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, हम लोग एलिमेंट्स को क्लासिफाई करके रखेंगे। समझे मैंने क्या बोला? कुछ समझा? What I Yes. said? Yes, Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. समझा? Yes, ma'am. Yes, yes. Yes, miss. Same, you can take an example of kitchen of your home. जब आप किचन में एंटर करते हो, मम्मी प्रॉपरली सारे डब्बों को अरेंज करके रखती है। ओके, यहाँ पे सॉल्ट का डब्बा है, यहाँ पे हल्दी का डब्बा है, यहाँ पर मिर्ची का डब्बा है। अगर कोई भी चीज कहीं भी रखी हो और आपको अचानक से कुछ करना है, आप फटाफट बना पाओगे क्या? जाके आपको डब्बे ढूंढने पड़ेंगे, है ना? yes. प्रॉपरली क्लासिफाई करके रखा है, ये मिर्ची है, ये टर्मरिक है, तो आप इजीली उसको यूज कर सकते हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग? मतलब क्लासिफाई करके रखना इज गुड, है ना? है कि नहीं? बोलो बच्चों। Yes. Yes, ma'am. Yes, miss. ये सारी टेक्निक्स देखकर डिसाइड किया कि जब हम नई नई एलिमेंट्स डिस्कवरी कर रहे हैं, हम उनका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो डैट अगर मैं कभी समझो किसी को कार्बन के बारे में पढ़ना है, क्या कार्बन को यूज करना है, एक रिएक्शन कर रहे हैं हम, ठीक है? रिएक्शन का मतलब क्या होता है पता है? अलग अलग केमिकल्स को मिक्स करना। एक रिएक्शन कर रहे हैं, उसमें हमको कार्बन चाहिए, तो हमको ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो टेबल, जिस टेबल में हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर कर सजाएंगे, वहां से हम पटाख से उठाकर कार्बन को यूज कर सकते हैं। कुछ समझ रहे हो मैंने क्या कहा? कुछ Yes. समझा? Yes, व्हाट आई सेड? Yes, miss.
Are you people clear what I am trying to say? यहाँ तक चीजें Yes, clear ma'am. है? Yes, miss. Yes, miss. Okay. Now let's revise some basic part of your uh, 9th standard, and then we will move into the new part of your 10th standard. अब ये तो समझ गया कि मैम ये पीरियोडिक वर्ड तो मैंने अभी नहीं समझाया है, इसका मीनिंग मैं थोड़ा देर बाद समझाऊंगी. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्यों करना है वो तो क्लियर हो गया है ना, है कि नहीं? Yes. बोलो. Okay. Yes. So let's first revise some basics of your 9th standard, and then we will move more into the chapter. So सबसे first question when I start studying chemistry is what are types of matter? Matter कितने types के होते हैं? Answer? कितने टाइप के मैटर देखे हैं आपने? 3. What are the types of states? कितने टाइप के states होते हैं मैटर के? Liquid, solid, and States, liquid, gaseous, and solid. Solid, liquid, gaseous. Gaseous. मैटर बेसिकली. हालांकि अब और भी स्टेट्स आ चुके हैं जिनके बारे में थोड़ा हायर स्टैंडर्ड के साइंस में पढ़ाया जाता है, बट बेसिकली आपके लिए इतना ही है. So your matter is divided into 3 types: solid, liquid, and gas. Are you clear what I am trying to say? Yes. Yes. Are you clear? Yes, Yes, ma'am. miss. Okay. No, I'll tell you when you have to write. I'll dictate the things. So don't write it. When I'm teaching, you have to just focus on whatever I'm saying to you. Okay. When I'll tell you, okay, students, start writing, and I'll start dictating, then you have to write. Okay. Don't write with me, because in between I can give you many more things also to write. Okay. So don't write with me. When I'll tell you that, okay, students, start writing, I'm dictating, then only you have to write. Otherwise you don't have to write. Okay. Okay. Next. अब मैंने ये तो बता दिया कि what are the type of matter. हमने तो ये पढ़ा ही नहीं कि matter क्या होता है भाई. What is matter? What is matter? How you can define matter? मैं बोलती हूँ अरे भाई matter है. झगड़े वाला matter नहीं चाहिए हाँ मेरे को कि matter हो गया. What is matter? According to science, according to you, what do you think? What is matter? सोचो और आंसर करो. सोचो बच्चों. ठीक है, चलो मैं बताती हूँ. अब जब लोगों ने सोचना चालू किया कि भाई मैटर क्या है, तो लोगों को एक ही तरीका सही लगा मैटर समझाने. मैटर is something which occupies space. मैं मेरे पेन को मैटर बोल सकती हूँ क्या? ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना, कर रहा है कि नहीं? Yes. ये जो बुक है ये टेबल के ऊपर स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो इज इट अ मैटर और नॉट? बोलो. Yes. It is a matter. It is a matter. The ink by which I am writing on the book, वो भी तो अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना, Yes. 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 so it will be a matter. Yes. आप एक कंटेनर Yes. में आप पानी डाल देते हो, वो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है ना, तो लिक्विड इज ऑल्सो मैटर. Matter. Yes. समझा? सो बेसिक डेफिनेशन क्या है मैटर का? मैटर वो चीज है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है. समझ रहे हो मैंने क्या कहा? जो भी Yes, चीज yes, स्पेस yes. ऑक्यूपाई करती है, दैट इज अ मैटर. ओके, टेल मी, गैस इज अ मैटर और नॉट? It is a matter. It is a matter. इट इज अ मैटर. एक क्लासरूम में अगर कहीं पर कोई परफ्यूम लगा कर आया है, वो पूरे क्लासरूम में स्प्रेड हो जाता है कि नहीं? वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है कि नहीं, है कि नहीं? Yes. Yes, होता है. So matter is something which occupies the space, and matter is divided into how many types? Bolo? Three types. Three types. What are those 3 types? Answer. Solid, liquid, and gaseous. Are you clear till this much? Yes. Yes. Okay.
Do you know how many types element is divided? एलिमेंट कितने टाइप में डिवाइड होता है? डू यू नो अबाउट दिस? कितने टाइप के एलिमेंट सुने हैं 8th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में? 3. व्हाट आर दोस 3? Metals, non-metals, metalloids. Metal, non-metal. नॉन मेटल्स, Metal. मेटल। Metalloids. ठीक है। मेटल्स जो होते हैं ना, दे आर लाइक गॉड। इनको हम गॉड के नाम से जानेंगे। बहुत अच्छे होते हैं नेचर में, इनको दोस्ती करना बहुत पसंद होता है और ना हमेशा सामने वाले को डोनेट करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। भाई तुझे कोई भी आया बेचारा गरीब इंसान, वो बोलेगा मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, मेटल क्या बोलेगा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुझे इलेक्ट्रॉन दूंगा। सो ये हमेशा डोनेट करते हैं, दे आर लाइक अ डोनर। ये बहुत अच्छे। जैसे अभी तुम लोगों का फेवरेट पर्सन कौन होगा? किसके बारे में बहुत तारीफ सुनी है लॉकडाउन में? बोलो, हु इज दैट? जो सब जगह डोनेशन कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है। Sonu Sood. Sonu Sood. Sonu Sood, right? Sonu Sood is working in a very good way, right? He is helping other people. हर जगह डोनेशन कर रहा है, लोगों को मदद कर रहा है। वैसे ही मेटल्स होते हैं, वो बहुत डोनेशन करते हैं। कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी पड़ी, मेटल्स आर ऑलवेज रेडी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझा? Yes, yes. Yes, ma'am. Yes. नॉन Yes, मेटल्स ma'am. ये बेचारे गरीब लोग होते हैं, दिस आर पुअर पीपल। इनके पास नहीं होता कुछ डोनेट करने, उल्टा इनको बहुत जरूरत होती है। ये हमेशा एक्सेप्ट करने का काम करते हैं, दे ऑलवेज एक्सेप्ट। ओके, एंड दिस मेटलॉइड, इनके पास कुछ प्रॉपर्टी मेटल की होती है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की होती है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? Yes, अरे yes. क्लियर Yes, ma'am. Yes, miss. कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ लो। No, miss. No, miss. No. हमने पहले पढ़ा No, miss. कि क्लासिफिकेशन का रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों करना है क्लासिफाई। फिर हमने पढ़ा मैटर कितने टाइप के होते हैं। हमने देखा मैटर 3 टाइप के होते हैं बेसिकली। फिर हमने समझा कि मैटर ही क्या, कि मैटर है क्या। तो हमको पता चला कि जो भी चीज स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको हम मैटर के नाम से जानते हैं। फिर हमने पढ़ा एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं। सो वी फाउंड एलिमेंट्स 3 टाइप के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। मेटल्स जो होते हैं वो गॉड की तरह होते हैं, ये हमेशा डोनेट करने में बिलीव करते हैं। नॉन मेटल्स होते हैं, ये बेचारे गरीब होते हैं, ये हमेशा एक्सेप्ट करने में बिलीव रखते हैं। और मेटलॉइड जो होते हैं, ये इनके पास कुछ प्रॉपर्टी मेटल जैसी होती है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल जैसी होती है। इतना समझा है आपको? Yes, Yes, miss. yes. Yes. Yes, miss. ओके, थर्ड वन, व्हाट डू यू थिंक मैटर का सबसे छोटा यूनिट क्या होगा? सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। Atom. आंसर इज एटम। आइटम नहीं, एटम। ओके, सो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ओके, पहले जब डिस्कवरी शुरू हुई, नए नए साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर किया, तो लोगों ने बोला कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। पर अब आपको पता है ना एटम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? बोलो क्या क्या प्रेजेंट होता है एटम के अंदर? Proton, neutron, and electron. Proton, neutron, electron. यस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। मतलब एटम को हम फर्दर भी ब्रेक कर सकते हैं। सो पहले, बहुत पहले जब डिस्कवरी शुरू हुई तो लोगों ने बोला कि तब उनके पास नए नए मशीन्स नहीं थे, नई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो लोगों ने बोला कि सबसे छोटा जो होता है ना वो एटम होता है, हम उसके नीचे उसको तोड़ नहीं सकते। ओके, एंड द लास्ट पार्ट which is very very important to understand, difference between molecule, difference between molecule and compound. Can you people tell me what is the difference between molecule and compound? What is molecule and what is compound? Molecule किसको बोलते हैं और compound किसको बोलते हैं? कोई एग्जाम्पल देगा मुझे? क्या बेसिक डिफरेंस है मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बीच में? बोलो।
ठीक है। मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सेम टाइप और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से बनाया जाता है, जैसे कि N2, H2O, these are molecule. But when I am talking about compound, ये हमेशा डिफरेंट टाइप से ही बनाया जाता है, जैसे कि H2O, HCl। समझ रहे हो मैंने क्या कहा? Yes, ma'am. मॉलिक्यूल Yes. सेम टाइप से भी बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर कितने कितने एलिमेंट है बोलो? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन N2? कितने एलिमेंट्स है? 2 टू। nitrogens. कौन से कौन से? Nitrogen. कौन से हैं? Nitrogen. और नाइट्रोजन, इसमें? और इसमें? ऑक्सीजन, Hydrogen and oxygen. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है ना? Yes. करेक्ट। यस, Yes, ma'am. मॉलिक्यूल्स आर दोस जो सेम एलिमेंट से भी बनाए जा सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट से भी बनाए जा सकते हैं। पर कंपाउंड के लिए कंपलसरी क्या है बोलो? You always with कंपाउंड बनने different type of elements. Different types यस, of मतलब कंपाउंड्स को हम मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं, पर सारा मॉलिक्यूल कंपाउंड होगा क्या बोलो? देख के बताओ, No, ma'am. सारे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड No. होंगे क्या? N2 मेरा कंपाउंड है कि नहीं बताओ? elements. नहीं है मैम. नहीं है, क्योंकि कंपाउंड के लिए कंपलसरी स्टेटमेंट क्या है? व्हाट इज द कंपलसरी स्टेटमेंट फॉर types. कंपाउंड? They have to be different type of टाइप्स ऑफ element. एलिमेंट होना चाहिए। समझ रहे हो मैंने क्या कहा? यस, समझा मॉलिक्यूल और Yes, ma'am. कंपाउंड के बीच में? Yes. तो अगर आपको किसी ने बोला कि टेल मी व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड, बोलेगा मॉलिक्यूल सेम एलिमेंट से भी बन सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट से भी बन सकते हैं, पर कंपाउंड का ऐसा नहीं। कंपाउंड को डिफरेंट एलिमेंट से ही बनाया जिसको हम डिफरेंट एलिमेंट से बनाते हैं उसी को हम कंपाउंड बोल सकते हैं। तो ये बात है कि सारे कंपाउंड जो होते हैं वो मॉलिक्यूल होते हैं, पर सारे मॉलिक्यूल्स को हम कंपाउंड नहीं बोल सकते। समझ में आ रहे हो? जैसे कि H2, ये मेरा मॉलिक्यूल तो है पर ये मेरा कंपाउंड है क्या? नहीं है। No, ma'am. नहीं है। नो, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? यस, Yes, ma'am. Yes, miss. Yes, miss. आर यू श्योर? कोई डाउट नहीं Yes, आता? ma'am. ठीक है, यस, No doubt. ठीक है। राइट ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर टाइप्स ऑफ मैटर? पहला ऐसा क्वेश्चन डालो, क्वेश्चन पहला नंबर डालो और वहां पे लिखो व्हाट आर टाइप्स ऑफ मैटर। व्हाट आर टाइप्स ऑफ मैटर। अगर स्पीड फास्ट जा रही है तो आप लोग रोक सकते हो मुझे, ठीक है? क्योंकि मेरे सामने नहीं हो ना आप, तो मुझे पता नहीं चलेगा। व्हाट आर टाइप्स ऑफ मैटर? What are types of matter? कितने टाइप्स से लिखो? How many types are there? 3 types. Three Solid, types, liquid, three and types. gaseous. लिख लो, आंसर लिख लो। There are 3 types of matter: solid, liquid and gas. ये हो जाए तो बताना। हो गया। Then हो गया? दूसरा क्वेश्चन लिखो। What are types of element? What are types of element? मिस हो गया लिख के क्वेश्चन। कितने टाइप के होते हैं एलिमेंट्स? 3 types. 3 types. लिख के ले लो फटाफट।
हो गया? No, miss. Yes, miss. Okay. Yes. Next. What are the smallest particle of matter called? Write down. बच्चों क्वेश्चन लिख रहे हो ना साथ में? You have to write the question Yes. also. Yes, Yes, miss. miss. Yes, ma'am. What are the smallest particle? What are the smallest particle of matter called? Matter. Called. What are smallest particle of the matter called? क्या है smallest particle बोलो? Atom. Atom. Write down. The smallest particle of the matter is called as atom. Done? Yes. Yes, miss. Okay. Write down next. What is the difference between molecules and compound? What is the difference between molecules and compound? Miss. Done. लिख लिया क्वेश्चन? Yes. Yes, ma'am. लिखो आंसर. क्या लिखोगे? Molecules can be made from same type of elements or different type of elements. But compound should be made from what? बोलो. Compound Different should type be of made from elements. Different type of different type of elements. लिख के ले लो ये फटाफट. Ma'am, please repeat. Okay. Molecules can be made from same type of elements or different type of elements. Molecules can be made from same type of elements or different type of elements. Compounds can be made from, but compounds can be made from actually can be मत लिखो. Compound should be made from. Can को कट करके should डालो. Compound should be made from different type of elements. मत करो. Compound be made from different type of elements. Hence, all compounds are molecule
Hence, all compounds are molecule, but all molecules are not compound. Hence, all compounds are molecule, but all molecules are not compound. Done? Yes. ये लास्ट Yes, वाला miss. डेफिनेशन अभी का भी याद करो. Start learning this definition. I'm looking at you people. चलो लास्ट का और कुछ एग्जांपल्स लिखो खुद से. मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स लिखो, कंपाउंड के एग्जांपल लिखो. Manish, are you writing? आरुषि, अच्छा ओके फाइन. तृप्ति, कैमरा ऑन करो. कोई कैमरा ऑफ करके नहीं बैठेगा. तृप्ति कैमरा ऑन करो. लास्ट ईयर की तरह नहीं करना है इस बार. अब आप 10th में जा चुके हो, बोर्ड्स में हो. अब आप सीरियस होना पड़ेगा आपको. झलक, यशुदास, एल्विन, गणेश, बच्चों कैमरा ऑन करो. एटलीस्ट लेट मी सी यू पीपल. दैट्स ऑल. या हो गया पढ़ के? लिखा आप लोगों ने एग्जाम्पल? Yes, miss. Yes. ओके, so let's ask some people. श्रेया, क्या एग्जाम्पल लिखा मॉलिक्यूल का? H2. ओके, एंड Na. Sodium. सोडियम. ओके फाइन. N2. N2. ओके फाइन. संचिता, Yes, miss. कंपाउंड का कौन सा एग्जाम्पल लिखा? H2O. ओके, One more. HCl. यस ओके ठीक है. आदित्य, आदित्य राणी, मिस मैटर का डेफिनेशन दिखा. ओके लिख लो. राइट डाउन. ठीक है, मैटर का डेफिनेशन लिख लो. मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस. Matter is something that occupies space. Matter is something that occupies space. लिख लिया सबने? Done? Yes, miss. Yes, miss. Okay, let's move ahead. So this was the basic part. Let's move to one more basic part and then we will move ahead with the chapter. There are two things which you should know before going ahead with the chapter is atomic number and atomic mass number. पहले
ये डिस्कवर, फर्स्ट दिस वाज डिस्कवर। लोगों को पहले इसके बारे में कुछ नहीं पता। ओके, सो व्हाट इज एटॉमिक नंबर एंड व्हाट इज एटॉमिक मास नंबर? सो पहले जो डिस्कवर हुआ उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एटॉमिक मास नंबर, व्हाट इज एटॉमिक मास नंबर? सिंपली आपको पता है एक एटम में मिडल में क्या होता है? एट द सेंटर, बोलो क्या होता है? न्यूक्लियस। Nucleus. न्यूक्लियस के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। Yes, ma'am. सॉरी, Yes. दिस इज न्यूक्लियस एंड उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने घर में घूमते हैं। ठीक है, पहले में 2, दूसरे में 8। सो ये न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, इनका कुछ मास ही नहीं होता। दे आर ऑलमोस्ट, मतलब बहुत कम मास होता है, नेग्लिजिबल मास। जैसे आपके सामने एक छोटी सी चींटी आके खड़ी हो जाए तो उसके मास का कोई फर्क आपको पड़ने वाला है क्या? No, समझो, miss. आप एक वेइंग मशीन हो, एक वेइंग मशीन पे आप अपना वेट देख रहे हो, ठीक है? आपके साथ उस वेइंग मशीन पे एक चींटी आ जाए, कितना असर पड़ेगा? समझो अगर आप 30 kg के हो तो चींटी आने से आप 50 kg के हो जाओगे क्या? हाँ? No, ma'am. No, miss. No, इस miss. चींटी के आने से कोई फर्क पड़ेगा क्या तुमको? No. No. तो इसका वेट तुम लोगों को कोई फर्क, इसका मास तुम लोगों को कोई फर्क पड़ता नहीं है, नहीं. है ना? तुम्हारे सामने बहुत छोटी है बेचारी, तुम क्या एक गलती से उसके पे पैर रख दोगे, उसकी तो चटनी हो गई, पिचक गया बेचारा, है कि नहीं? है ना? Yes, miss. यस। सो ये इलेक्ट्रॉन्स भी ना ऐसे बहुत चींटी जैसे होते हैं, छोटे छोटे, तो इनका मास बहुत कम होता है। दे आर ऑफ वेरी लेस मास, तो इनका मास ना कंसिडर ही नहीं किया जाता। तो मैम एलिमेंट्स का मास आता कहाँ से? सारा मास ना ये न्यूक्लियस की वजह से आता है। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है बताओ? कौन कौन प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस? Proton and neutron. Proton and neutron. प्रोटॉन एंड Neutron. Neutron. तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, यही सबसे ज्यादा हाथी लोगों के जैसे होता है, और ये बेचारा इलेक्ट्रॉन है, ये चींटी जैसा होता है। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो हाथी है ना, उसके सामने बेचारे इस चींटी की कोई वैल्यू ही नहीं होती। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? इसके मास की कोई वैल्यू नहीं होती। चलो मैंने तो यहाँ पे एक चींटी बोली, अगर लेट्स से अगर 15 चींटी भी आ जाए तो तुम्हारे मास से क्या तुम 30 kg के से 35 हो जाओगे क्या? हाँ, No, ma'am. तो भाग जाओगे वहां से। अगर लाल वाली चींटी आ गई तब तो भाग जाओगे कि भाई कौन कटवाएगा अपने आप को, है कि नहीं? हाँ या ना? मतलब अगर 15 चींटी भी आ जाए तो तुम्हारे वेट को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना? वो बहुत ही छोटा है। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, ये हाथी जैसे होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। मतलब सच में हाथी जैसे नहीं होते, इनका साइज इलेक्ट्रॉन के सामने बहुत बड़ा होता है, इनका मास इलेक्ट्रॉन के सामने बहुत बड़ा होता है। तो समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? वैसे तो आपको पता है कि एटम इटसेल्फ इज वेरी वेरी स्मॉल, है ना? समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग? Yes, miss. ये इलेक्ट्रॉन के सामने इनका मास बहुत बड़ा होता है। तो एलिमेंट का जो भी मास होता है ना, एलिमेंट का जो भी मास होता है वो किसकी वजह से होता है? सिर्फ बोलो, किस कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके मास के? Nucleus. Nucleus. प्रोटॉन एंड Neutron. न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस तो उनका घर है रहने का। न्यूक्लियस इज द होम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो whatever mass is there is all because of the proton and neutron. समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? समझा? Yes, miss. Yes, miss. So Yes, what ma'am. is atomic mass number? Atomic mass number is total number of proton and न्यूट्रॉन। क्या होता है एटॉमिक मास नंबर? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन Proton एंड And neutrons.
प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Capital A. कैपिटल ए। कैपिटल ए। कुछ समझे मैंने क्या कहा? यस कुछ समझा व्हाट आई सेड? Yes. Yes, miss. और स्टार्टिंग में ना इसको बहुत वैल्यू दी जाती है। जैसे कोई जिसको आप मम्मी पापा, वैसे तो मम्मी पापा सबको सेम वैल्यू देते हैं। समझो कहीं घर का बहुत लाडला है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कोई लाडला है तो हम क्या बोलते हैं? अरे सर चढ़ा के रखा है, बोलते हैं कि नहीं? है कि नहीं? हाँ या ना? Yes. तो ये ना ये बहुत लाडला होता है लोगों का। तो इसको है ना, समझो अगर समझो आपका ये कोई एलिमेंट है, इसका मैं कुछ नाम नहीं दे रही हूँ, और ऊपर ऐसा 29 लिखा है, तो ये 29 देखते समझ जाने का कि ये क्या दिया हुआ है। व्हाट इट इज गिवन? व्हाट इट इज गिवन? इट इज Atomic mass एटॉमिक Mass number. एटॉमिक मास नंबर। ये ना बहुत लाडला होता है एटॉमिक मास नंबर, इसको हमेशा सर चढ़ा के रखते हैं। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? कुछ समझा? Yes, miss. Yes, miss. ये क्लियर हुआ? यस मिस। एटॉमिक Uh, मास नंबर क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर रिपीट करो, बोलो। व्हाट इज एटॉमिक टोटल मास नंबर नंबर? ऑफ Atomic प्रोटॉन mass एंड number. न्यूट्रॉन। This is total number of proton and neutron. टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। समझो आपको किसी ने बोला कि एक एलिमेंट है, उसके पास 5 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन है, मुझे उसका एटॉमिक मास नंबर बताओ। आंसर क्या होगा? बोलो। 10. यस, आंसर इज 10, क्योंकि हमने अभी देखा एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दैट इज प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर ऐड कर देने का सिंबल। समझ में आया व्हाट आई सेड? Yes. Yes, ma'am. Yes, miss. यस नाउ जैसे जैसे डिस्कवरी बढ़ती गई, लोगों को एटॉमिक नंबर के बारे में कुछ पता चला। अब ये क्या है वो देखते हैं। अब भाई एटॉमिक मास नंबर को पहला नाम दे दिया था, पहला अल्फाबेट दे दिया था, सॉरी पहला अल्फाबेट दे दिया था। क्या था एटॉमिक मास नंबर का अल्फाबेट? याद है? एटॉमिक मास Capital A. नंबर Capital A. Capital A. Capital A. कैपिटल है। अब बेचारा जब एटॉमिक नंबर आया तो लोग क्वेश्चन मार्क हो गए कि अब इसको क्या अल्फाबेट दे। ए तो हमने कैपिटल ए तो एटॉमिक मास नंबर को दे दिया। लोगों ने बोला जाने दो, ये सब ये बहुत देर से डेवलप हुआ है ना, बहुत लेट से आया, तो इसको अपना जेड बोलेंगे, सबसे आखिरी अल्फाबेट। एटॉमिक मास नंबर को सबसे प्यारा था तो पहला अल्फाबेट दे दिया, और एटॉमिक नंबर बेचारा लास्ट में आया तो उसको सबसे लास्ट वाला अल्फाबेट दे दिया। समझे? एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z. कैपिटल Z. जेड। अब ये एटॉमिक Capital नंबर Z. होता क्या है? व्हाट इज एटॉमिक नंबर? ये क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये मास से रिलेटेड नहीं है, आप ये नंबर से रिलेटेड है। क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर आपको किसी तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके मिल जाए या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काउंट करके मिल जाए तो आपको उसका एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? Yes. Yes, miss. यस यहाँ पर ऐड नहीं करना है एटॉमिक मास नंबर में। ये बातें बच्चों बहुत ध्यान से सुनो, हम काफी जगहों पर यूज करने वाले हैं। यहाँ पर प्रोटॉन के नंबर को और इलेक्ट्रॉन के नंबर को ऐड नहीं करना है। समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग? समझे? यहाँ पर या तो प्रोटॉन का नंबर काउंट करना है या तो इलेक्ट्रॉन का नंबर काउंट करना है। पीछे हम क्या कर रहे थे? बोलो, पीछे हम क्या कर रहे थे? प्रोटॉन Proton And and neutron. neutron को add. ऐड कर रहे थे। यहाँ पर या तो प्रोटॉन को काउंट करना है या तो इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? Yes. Yes, miss. Yes, miss. यस मिस। ओके। और ये बेचारा लास्ट में आया है ना, तो इसको हमेशा ऊपर हम एटॉमिक मास नंबर लिखते हैं और नीचे हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं। समझ रहे हो यहाँ तक? Yes, miss.
समझे? Yes, miss. ओके, लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, एक समझते हैं फिर आपको समझेगा आपको कितना समझा है। एक एलिमेंट है जिसके पास 10 प्रोटॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 10 न्यूट्रॉन्स हैं। मुझे इसका एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर बताओ, क्या होगा? Atomic mass Atomic number Atomic 20. mass number 20 और 20 and atomic atomic number number is is 10. 10. यस, एटॉमिक मास नंबर इज 20, क्योंकि 20. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर देते हैं, है ना? और एटॉमिक Yes, नंबर yes. कितना होगा? 10. 10. या तो प्रोटॉन के 10. काउंट को देखेंगे या तो न्यूट्रॉन के काउंट को देखेंगे, तो दोनों 10 है। समझ रहे हो? Yes. और yes. हमेशा yes. जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। न्यूट्रॉन कम ज्यादा हो सकता है, पर जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। कुछ समझे मैंने क्या कहा? समझा? Yes. Yes, ma'am. अगर मैंने आपको बोल दिया कि भाई मेरे पास है ना, मेरा एलिमेंट के पास है ना 50 प्रोटॉन है, तो सिंपली आपके दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए कि अगर मेरे एलिमेंट के पास 50 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? हाउ मच विल बी द इलेक्ट्रॉन? 50. 50. 50. समझे व्हाट आई सेड? Yes, ma'am. गिव द हेडिंग एज एटॉमिक मास नंबर और उसके आगे कैपिटल ए से लिखो रिप्रेजेंटेशन। Atomic. एटॉमिक मास नंबर कैपिटल ए से लिखो and write down the definition. Atomic mass number is total number of proton and neutron. and के ऊपर है ना ऐसा प्लस साइन दिखा देना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ऐड करना होता है। Atomic mass number is total number of proton and neutron. Miss done. हो गया? Yes, Miss. Yes. miss. रिपीट Yes. करो। ओके, लिखो नेक्स्ट एटॉमिक नंबर, उसके आगे कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करो। एटॉमिक मास नंबर लाडला होता है तो हमेशा उसको ऊपर लिखा जाता है। एटॉमिक नंबर बेचारा पीछे से आया है तो उसको नीचे लिखते हैं। नीचे. एटॉमिक नंबर कैपिटल जेड, कोई छोटा जेड या छोटा ए नहीं लिखेगा। देखो, एटॉमिक नंबर इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Mansi miss, यस सर। you're done. Sir, 2 minutes. Okay. Atomic number is total number of protons or total number of electrons. लिख लिया? ये सिंबल कहीं पर लिख के लो वहां पर कि ऊपर जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है और नीचे जो होता है वो सॉरी ऊपर जो होता है वो एटॉमिक मास नंबर होता है और नीचे जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। Can you repeat this? Atomic number is the total number of protons और total number of electrons. ठीक है, सो हम लोग नेक्स्ट टाइम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर पे थोड़े सम्स करेंगे, फिर हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बाय बच्चों, टेक केयर।